It is indeed an evening in all its grandeur as we gather here today for yet another book unveiling in Delhi. I, Archana Dalmia, Ehsaas Women of Delhi, warmly welcome you to a magnificent book launch here at the India International Center, organized by Prabha Khetan Foundation in association with HarperCollins. Amidst us today, we are privileged to have personalities from a field of literature, academics, and public affairs. We gather here tonight for an immensely riveting book launch of 5 Decades in Politics by Sushil Kumar Shinde ji, as told to Rashid Kidwai ji in the august presence of Sri Mallikarjun Kharge, Sri Digvijay Singh, Sri Vijay Dhar. The event will follow a discussion around the book between the distinguished personalities, moderated by Rajdeep Sardesai. Today's event falls under the gracious patronage of Sri Cements Limited, with the unwavering support of Ehsaas Women of Delhi and HarperCollins. Before the evening transcends further for the most awaited discussion, allow me to speak a few words about the Prabha Khetan Foundation. Prabha Khetan Foundation, as a Kolkata-based non-profit trust, is recognized as an organization that creates the finest literary and cultural experiences on the global map. The foundation dedicatedly works across more than 50 cities to connect readers to the literary creations of authors and poets, and showcases talented musicians, dancers, storytellers, and performing artists through its stellar literary and cultural initiatives like the Right Circle, Kalam, Akhar, Kitab, and Author's Afternoon, Loves, Shabd, Ek Mulaqat, Tete, The Universe Writes, Chaupal, Rahat, Karuna, Muskan, and boutique festivals like Shernaama and Ramayan Kala Utsav. It supports the UNESCO view that cultural development has the potential to be an alternative way of promoting sustainable development in poor rural communities. The anthem of Prabha Khetan Foundation warrants a special attention. It is ensured by the national philosophy, Unity in Diversity, curated by the musical genius of Vishwa Mohan Bhattji, Pandit Vishwa Mohan Bhattji. I now welcome and invite Mr. Udayan Mitra of HarperCollins to come up to the dais and say a few words. Thank you. I won't take much of your time. Just quick word from the publishers to welcome everyone here, and very glad to be partnering with the Prabha Khetan Foundation for this very prestigious event. It's a very special evening for us as we publish, as we launch Sri Sushil Kumar Shinde's memoir, 5 Decades in Politics, written with Rashid Kidwai. It's for all of you who know Shinde Sahab, this is, and I am sure many of you do, this is something we've been waiting for some time, to hear
what he has to say about his truly extraordinary life. It's like, as the title says, it's 5 decades in politics. He started from the grassroots. The book tells the story of how over the years, over the decades, he grew politically, grew in stature, grew to maturity, and later became Union Home Minister, Maharashtra Chief Minister, AICC General Secretary, as you all know. He was also at one point the UPA candidate for the vice presidentship. It's a truly extraordinary journey in politics. It's also the story of what has transpired in the Indian political sphere over the last, say, 6 decades. Mr. Shinde has not been active in politics for some time now. And it is, if I may say, it's a truly inspiring story. That is something that struck us when we were reviewing the manuscript and then when we went on to publish it. There are many things to be learned here. And this is why we are really proud and privileged to be publishing this. It's a journey that Mr. Shinde has undertaken always with a smile on his face, and you'll see that smile reflected on the book cover as well. That is what he's known for. I think there is a great lesson for us there as well, that life and the political world has thrown all kinds of challenges at him, but he has weathered them all always with a smile, and he has survived and he has conquered. I also wanted to thank Rashid in particular, because he made this book happen, and it became the book that it is because of him. So thank you, Rashid. And we will have introductions to our very extraordinary panel of discussants in a bit, but I just wanted to, on the publisher's behalf, I wanted to welcome Shri Mallikarjun Kharge ji, Shri Digvijay Singh ji, Shri Vijay Dhar, and Rajdeep Sardesai, who also happens to be a HarperCollins author. And of course, welcome to Sushil Kumar Shinde Saab and to Rashid Kidwai. That is all from me. I will hand it back to you, and we can proceed with the evening. Thank you so much. Thank you for your inspiring words, Udhim. May I now take the privilege to welcome the dignitaries on stage. It is now a great honor to invite the man of the match, Shri Sushil Kumar Shinde ji, a personality who needs no introduction, onto the stage. Can I also invite the author Rashid Kidwai ji, Shri Mallikarjun Kharge ji, Shri Digvijay Singh ji, Shri Vijay Dhar ji, and today's moderator, Rajdeep Sardesai. Prabha Khaitan Foundation's efforts to foster unity and appreciation of the rich cultural heritage across India's diverse states. We promote local artisans and their handlooms, handicrafts and artifacts to encourage all to buy local products from the local craftsmen in their sustainability and development. Keeping this in mind, we are pleased to felicitate with one such giveaway of handcrafted handloom dupattas. Now may I request Anandita Chatterjee, Executive Trustee of Prabha Khaitan Foundation, Nilima Dalmia Adhar, Honorary Convener of Delhi NCR Affairs, and Ehsaas Women of Delhi, Anandita Chatterjee,
Anantmala and Karuna to please come up and do so. Can I request Mr. Udyan Mitra also to come up onto the dais? And now for the long-awaited section of the event today, the book launch. We have the book launch of both the English and the Hindi editions. But you can start with English. अगर इसको मानते हैं तो ही खोल देते हैं आप खुला ही दे दिए मैं सही रखते You can remove. Many congratulations to Sushil Kumar Shinde ji and Rashid Kidwai ji for adding another gem to your sparkling collection of creations. We shall now commence with the discussion with today's moderator, Rajdeep Sardesai, someone with a groundbreaking career in the field of journalism, news anchoring, reporting and literature. He needs no introduction. I request you to take the proceedings further. Shall I take these or shall I leave these here? Up to you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Dignitaries on stage, Congress President Mallikarjun Kharge, the man of the moment, Mr. Sushil Kumar Shinde, Mr. Vijay Dhar, Digvijay Singh ji, Rashid Kidwai, the co-author. Most importantly, all of you wonderful people out here. It is my great pleasure and honor, true honor, to introduce Sushil Kumar Shinde to this wider audience. I say it because Mr. Shinde is, in his own small way, contributed a great deal to helping me in my early days in this profession in the late 1980s. I was a young journalist in Mumbai, struggling to find my way through Mantralaya and the corridors of power in Maharashtra. And the one person whose door was always open for journalists, and it's a lesson for today's politicians who often keep their doors closed, sadly, to journalists, was Mr. Sushil Kumar Shinde. You could come any time of the day to Mantralaya. Mr. Shinde would greet you with the same affection that he greets you today and with the same smile, that endearing smile that he has today. He was then Minister for Youth and Social Welfare. And the good thing about youth and social affairs, I think, and the good thing about that was he would organize once a month a Qawwali or a music recital where he would occasionally invite us journalists. So it was another age, an age of conviviality. It didn't stop us from questioning him. It didn't stop us from raising troubling questions, but he was one of those politicians who never took anything you said about him to heart. And that again made him very different. I still remember he was part of I don't know whether he remembers it, he was part of a rebellion, which we were rather astonished that Mr. Shinde would be part of a rebellion. But he was part of a rebellion in 1990 against Sharad Pawar. He, of course, today says it was not really a rebellion, Rajdeep. We were just dissenting. But either way, there was him, there was Mr. Vittal Rao Gadgil, Shankar Rao Chavan, and a few other leaders of Maharashtra at the time. And Mr. Shinde would inevitably tell us exactly what had happened on both sides. He knew what was happening in the Pawar camp and he knew what was happening in this camp. So if you wanted to know as a journalist, because he had mere aadmi charo taraf hai kind of attitude.
he was that kind of a politician. And that is truly his success. In this age where politicians and politics has become more and more polarized, where politics is about them versus us, where politics is about enmities, Sushil Kumar Shinde is a reminder that there were age where you could be rivals, you could contest against each other, but you would maintain some of the finer qualities of being human beings. And I think that's why he stands out, and that's why he has built so many friendships over the years. I have one more story about Mr. Shinde which I must share today. I wasn't sure whether I should, but I will. The year was 1999. Mr. Shinde was in charge of Sonia Gandhi's first election campaign in Amethi. And I was in NDTV, and we used to do a program called Follow the Leader, 24 hours with a leader. I had originally wanted to do it with Sonia Gandhi, but Mrs. Gandhi was playing tough to get at the time. So we settled on Priyanka Gandhi Vadra, who was only organizing the campaign of Mrs. Gandhi in Amethi. Now Sushil Kumar Shinde ji was in charge. So I rang him up and I said, sir, I want to come and do a show. He said, typically, aa jao, koi problem nahi. So I landed up there, I think it was the month of October. First of all, getting a place in Amethi was impossible. So I said, sir, I reached late in the evening. So I said, sir, where do you know where I could stay? Arey, mere saath ruk jao. So there we were in a small guest house, not too far away from where the Gandhis had their rather larger place, but it was almost a single bed, but you could call it 1.5 bed. So I said, sir, where should I? Nahi, tum mere saath so jao. So Mr. Shinde and I slept together. Next morning it was a little cold in the morning. Hot water was a problem. There was only half a bucket of hot water. So I said, sir, why don't you go? He said, nahi, we will share 50-50. So I said, okay, we'll share 50-50. Now that's all very well. I said, sir, I have come here for a purpose. Either you get me Sonia Gandhi or you get me Priyanka Gandhi. One of the two I have to do 24 hours. She said, 24 hours? I said, sir, that means whole day I have to spend with her. He said, I have one idea. तुम चलो मेरे साथ सुबह हम लोग 7 बजे जाएंगे प्रियंका जी के वो गेस्ट हाउस में and you try your luck. I said, sir, but I thought you had already fixed it. He said, no, figure, you try your luck. So I said, can you give me a tip as to how do I get this interview? He said, see, when we go there, tum smile karo. So I said, okay, I'll smile. So I said, how will that help? He said, look at me. All my life I've smiled and see where I've come. And he was right. And he was right, because I smiled, and Priyanka Gandhi Vadra, and we are talking about 1999, was very young, had never come on television before then, gave us the most wonderful 12 hours where she opened herself out to the camera and spoke to us, including one particular memorable scene, which I hope is still on the NDTV archives. I don't know how many channels keep their archives, but it is truly gold dust, because we were lunchtime, 2:30 in the afternoon, and we were in the middle of nowhere. Shinde ji, again resourceful as ever, suggested that we have lunch in some field. So there was a nice dari laid out in the middle of the field, Priyanka Gandhi, myself and Sushil Kumar Shinde. And the genuinely humble man that he is, who's never worn his power on his sleeve. And I've always thought he's never played either the Dalit card, nor has he ever spoken to you with a sense of that, jante nahi main kaun hu. We sat in that middle of the field. Now the question was, who's going to serve whom? Shinde ji promptly got up and ensured that first Priyanka ji and I were served. My cameraman is rolling all this. So we have these pictures of Shinde ji insisting that we have extra achar with those parathas. All of this on camera. Went like a dream. Couple of years later, Mr. Shinde became the Chief Minister of Maharashtra. And I remember ringing him up and saying, sir, sometimes giving achar to your leader does help. Because maybe Priyanka Gandhi Vadra remembered that Sushil Kumar Shinde ne hame achar bhi khilaya tha in 2001-2, and he became the Chief Minister of Maharashtra. He's been a man of many parts. He's played many roles in life, been many ministers. Digvijay Singh ji was just reminding me that even in the early 90s, he was General Secretary in charge of Madhya Pradesh. He's traveled, across every state, been a governor, been a senior minister, chief minister of Maharashtra, but as I said, has always worn his plea. And again, I think that's a lesson.
in an age where hubris and arrogance takes over, where politicians believe they are actually demigods and believe that journalists, as they should be, are cockroaches in the system. But I do believe that somewhere down the line, if we had more politicians like Sushil Kumar Shinde, who are more accessible and wore their power lightly, we'd build a better political India. So Sushil Kumar Shinde ji, congratulations. I'm going to, he typically says, I don't want to speak. मैंने कहा 2 मिनट तो आपको बोलना पड़ेगा. That's the very least. You just want to say something. You want him to come there? I also want to leave you with one thought. Sorry, sir. Before you, in this age, I had remembered this. In this age where everyone talks about, how they have risen from, they've been true kamdars. They've come from the bottom and gone to the top. Some people wear that on their sleeve and will insist on telling you what a kamdar they are. And will make sure that you put that in your copy or in any article you write. We have 2 gentlemen on this stage today. I know Digvijay Singh ji is also a kamdar in his own way, but we will keep him aside since he comes from a royal family. But the other 2 gentlemen, both of them, in their own way, are true people who quite remarkably have come from where very few would expect. Mallikarjun Kharge's story makes your hair stand up when you hear it, particularly when he tells you the story in his own inimitable word. I don't think there is quite a story like that of his life struggles and where he's come from. It's an incredible journey. And it's a journey that should inspire many Indians about what is possible in life. And again, he wears it very lightly. Sushil Kumar Shinde, as we found out, he would never tell us, but we found out many years ago, many years ago, was a court constable. And a court constable, I thought was a constable, but then Sushil Kumar Shinde ji told me what a court constable did, which is so-and-so Hajir Ho. And that was the role that he had in Solapur. And that boy in Solapur, who went with those dreams as a young court constable, went on to become the Chief Minister of Maharashtra. First Dalit Chief Minister, although he will not say it, but I will say it because it broke a big barrier in my home state. And therefore, Sushil Kumar Shinde ji, I think Maharashtra owes you a huge debt for what you did, and your journey is truly remarkable. Why don't you come and Sushil Kumar ji, Hajir Ho. Come. जी हुजूर परम श्रद्धेय today I take liberty to talk to audience and to you in Hindi. Because many times it happens that whatever emotions that you have to express, you cannot express in other languages. But I thought this is Hindi. It would have been better, you see, if I would have spoken to you in Marathi, but Hindi is reasonably good to everyone. मेरे साथी और एक दिलदार नेता दिग्विजय सिंह जी, जो बम्बई शहर के, जिनके पिताजी को हम देखते थे क्रिकेट खेलते, दिलीप सरदेसाई जी, उनके पुत्र राजदीप सरदेसाई जी, लेकिन वो पिता से भी ऊपर इधर जो खिलाड़ीपन करते हैं, वो राजदीप जी, श्रीयुत विजयधर जी, जैसे मैं पॉलिटिक्स में आया तभी से मैं उनका सलाह लेता हूं। राशिद भाई किरवाई जी, और पब्लिशर पिछले बार तो एक हमारी भगिनी थी पब्लिशर स्वाति जी, तो आज
ये उदय जी मित्रा आज आए हैं वो, और उपस्थित किसका नाम लूँ मैं, सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, वो सब नेतागण, देवी और सज्जनों। आज मैं सोलापुर से आया, सोलापुर, पूना, बम्बई करके यहाँ आया, क्योंकि किडवाई जी ने मुझे बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आज नहीं आता तो राजदीप जी ने जो आज बोला उसे मैं कैसा स्वीकार करता मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे लाइफ में राजदीप जी ने जिस तरह से भाष्य किया यहाँ, मैं भूल नहीं सकता हूँ। राजदीप जी का डर हमें हमेशा लगता था कि ये क्या बोलेगा और किसको कैसे बताएगा। और कोई नाराज नहीं होते थे उन पर, उनके भी दिल में हमेशा राष्ट्रभक्ति है और राष्ट्र के लिए वो काम करते रहे हैं। कभी कभी हमारे नेतागण और कार्यकर्ता और राजदीप जी में थोड़े से संबंध बिगड़े हुए ऐसे लगते थे, लेकिन वो तुरंत सुधार करते थे, तो उनकी एक खूबी है। तो आज वो यहाँ आए और मेरे बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे किडवाई जी कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि आपके बारे में किताब लिखना है और तुम खाली बोलते रहो। मैं बोला अभी मैं क्या बोलूं, इतना सब मेरा लाइफ नहीं, आपके पास जो जितनी भी किताबें हैं दूसरी भी, वो भी मैं देख लूंगा, मराठी, हिंदी। उन्होंने वो देखा, पढ़ा और कुछ प्रश्न भी उन्होंने पूछा। बहुत ब्रिलियंट है। प्रश्न ऐसे पूछते थे कि कभी कभी डिफिकल्टी में लाने वाले भी प्रश्न थे, लेकिन मैं 2-3 वक्त बच गया, एक वक्त नहीं बच पाया, लेकिन उसमें कोई कंट्रोवर्सी होगी ऐसा मुझे लगता था, लेकिन नहीं हो गई, क्योंकि वो बात सही थी। तो किडवाई जी ने सब, उनका श्रेय सब जाता है किडवाई जी को। मैं खाली बोलते रहा, उन्होंने इतने अच्छी तरह से लिखा है, मुझे खुद आश्चर्य लगता था कि मैं इतना कैसे अच्छा लिख सकता हूं। लेकिन आपने शुरुआत की, बहुत धन्यवाद आपके लिए। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा।
बोला हाँ, आपने नहीं, मराठी में बोला। नहीं, सच्ची है, नहीं वो हिंदी। लेकिन हंसाने के लिए मैंने बोला, लेकिन ऐसा एक्स पुलिस वाला ऐसा हो नहीं सकता है। लोगों के साथ बात की, क्या तकलीफ है उनको पूछा, कि जो उस वक्त उन्होंने बोला उससे ही मैं यहाँ रिपोर्टिंग करते रहा। और उसके बाद विजय भाई हमेशा मुझे बोलते थे कि ये करना वो करना, ऐसा रोज नहीं, कभी तो 6 महीने में एक आध बार वो बोलते थे और मैं उसका इम्प्लीमेंट करता था। तो विजय भाई तो मुझे पॉलिटिक्स में आने के पहले से ही जानते हैं, कश्मीर में नहीं जानते थे, बट शरद पवार मुझे लेके गए थे उनके पास। तो तभी से मेरा उनका रिलेशन रहा। खरगे साहब और मैं नजदीक की डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। वो गुलबर्गा के हैं, मैं शोलापुर का हूं, काफी कम अंतर है। मेरा सभी लाइफ उनको मालूम है। और आज हमारे संगठन के वो मुख्य है, तो मेरे भाग्य में इनके हाथों से अनावरण होना मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। और खरगे जी आप आए और किताब का प्रकाशन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और उन्होंने देखा है मेरा सभी पूरा लाइफ। वो भी मंत्री थे, मैं भी मंत्री था, बाकी सब हम चलते गए। लेकिन वो भी ऐसे हम शेड्यूल कास्ट है, हमारे को कुछ दे दो, इस प्रकार की भाषा करके वो राजनीति में नहीं आए। वो अच्छा विचार करते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। मेरा भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे जरा डर है, लेकिन नहीं वो राजदीप है ना, जब तक राजदीप है डर कोई नहीं, कवर होता। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा ही बोलूंगा सर, कि आपको सुनने के लिए ये सब लोग आए हैं। लेकिन आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, कि ये अंग्रेजी में का किताब, उसके साथ ये किडवाई जी ने क्या जादू किया मालूम नहीं, उसके साथ वो हिंदी का भी उन्होंने कर दे दिया। और इसके लिए पब्लिकेशन हाउस के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दोनों किताब हिंदी और इंग्लिश उसका अनावरण करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मित्रा जी आपको कहाँ गए हैं, तो आपको भी बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग आए, मुझे शुभेच्छा दे दी, और मैं अभी कुछ करने का रह गया नहीं लाइफ में, सब कुछ किया है। ये बात सही है, जहां से चपरासी से लेके यहाँ तक पहुंचना, इसका मतलब यह है कि कष्ट करते रहो और जो भी काम करते हैं उसके लिए शर्म नहीं आने दो, और जो भी काम करते हो उस पर श्रद्धा करो को आप ऊपर जा सकते हैं। और वो ऊपर जाने में साथ भी मिलता है। मुझे साथ मिली राजीव जी की, राजीव जी ने मुझे प्रोत्साहन दे दिया, और उनके बाद सोनिया जी ने, अभी मैं
मेरे पास शब्द नहीं है जो उन्होंने मेरे लिए किया। एक तो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बोल के उन्होंने भेजा, नहीं तो महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट का चीफ मिनिस्टर होना ये आसान काम नहीं था। ठीक है, सुशील कुमार शिंदे गोरा है, बोलने में अच्छा है, ब्राह्मण जैसा दिखता है, ताकि मेरे मिसेस से भी कायस्थ है तो उसके लिए उसको भी खड़ा किया, तो ये दोनों ठीक है बोलते। लेकिन पार्टी में ये निर्णय लेना कि शेड्यूल कास्ट को चीफ मिनिस्टर बनाना, ये सोनिया गांधी जी ही कर सकती है और उन्होंने करके बताया। और केवल इतना ही नहीं, मैं तो कभी पद के लिए झगड़ा नहीं किया। जब मुझे चीफ मिनिस्टर से सत्ता पे उतरने को कहा तो चुपचाप मैं चले गया और मुझे गवर्नर सोनिया गांधी जी ने किया। बट ये पॉलिटिकल में नेता समझदार होना चाहिए, जो उन्होंने ख्याल में रखा था कि इसको किस तरह से निकाला है पॉलिटिक्स में, जो माइट इज राइट जो होते हैं ना, तो वो हो गया था। तो उनके ख्याल में था 1 साल 1 महीने में सोनिया जी ने गवर्नर से भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री मुझे बनाया और यहाँ मुझे पावर मिनिस्टर बनाया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया, गवर्नर से मिनिस्टर बना। सोनिया गांधी जी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि दलितों पर किस तरह का अन्याय होता है, तो वो उन्होंने किया। अभी मुझे मेरे पार्टी ने क्या क्या मेरे लिए किया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेस्ट करने के लिए बोला, तो भी मुझे उस वक्त मालूम है आपको, हर साल जितने वोट पड़ते थे हर इलेक्शन में, उससे मैं 10 या 15 वोट ज़्यादा लिया। उसके लिए भी मुझे अभिनंदन किया। बट मैंने बोला कि ठीक है, ये तो लड़ाई होती है, लड़ाई में हार जीत होती रहती है, लेकिन उसमें नर्वस नहीं होते। मैं 2 बार डिफीट हो गया मेरा पार्लियामेंट में, वो भी एक किस्सा है कुर्सी का। तो फर्क नहीं होता, हम काम करते रहे और करते रहना चाहिए। इसी के लिए तो मैंने वो किताब में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और एक प्रेरणा मिलेगी इस प्रकार का मैंने काम किया है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बट मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे बम्बई में काम मेरा देखा और आज यहाँ, वो भी आएगी क्या नहीं आएगी ऐसा मुझे लगता था, लेकिन वो भी आ गए हैं। इसलिए आपको भी धन्यवाद। जय हिंद। I'll invite all our speakers to give short interventions. I will start with Mr. Vijay Dhar, who's known Mr. Shinde for a very long time. You can sit there or be here, Mr. Dhar, whatever you prefer. नमस्कार एवरीबॉडी। सुशील जी ने एक जिक्र किया कश्मीर के विजिट का एज होम मिनिस्टर, मगर ये शायद भूल गए मेरी इनकी मुलाकात कश्मीर में ही 50 साल पहले हुई थी। शायद इनकी नई शादी हुई थी। जब मैं देखूं 5 decades in politics, तो I have known him more than 5 decades and it's a privilege. और अभी मैं जब आया यहाँ पे तो मैंने इनका फोटो देखा, वही स्माइल 50 साल पहले की वही अब भी है। और एक चीज मैंने जो इनसे सीखी वो है ह्यूमिलिटी। I don't think I have met many politicians who've been as humble as he has been. ये अपने दुश्मन को भी स्माइल से ही मारते थे। सबको कहते थे अच्छा तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा,
वो भी खुश हो जाता था, ये भी अपनी स्माइल देते थे। कई वाक़े हैं जो मैंने खुद इनके साथ गुजारे हैं, और कई वाक़ों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी, वो थी इनकी स्माइल। और मेरे ख्याल में ये गलत है कहना इनका कि जी मैं बड़ा मेहनत की, मशहूरी की, इसलिए इस लेवल पे पहुंचा हूँ। अगर ये इस लेवल पे पहुंचे हैं, वो सिर्फ इनकी ह्यूमिलिटी और इनकी स्माइल। मुझे नहीं लगता इनकी वाकफियत में मैंने कभी इनको गुस्से में देखा किसी से। घर में शायद करते होंगे, वो भी कम, मगर मैं घर की बात नहीं करूँगा, अलग बात है। इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी पवार साहब से, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर इनकी अनबन हो गई। अनबन के बाद इन्होंने को अंगूर निकाले और अंगूर का नाम ही पवार रखा, और एक टोकरी मुझे भी मिली उनमें से, मुझसे। मैंने कहा यार ये मुझे समझ में नहीं आया कि कहते ये सीडलेस है, इसलिए कोई इसमें डिफरेंस की बात नहीं। तो वाकई इनके कैरियर तो इन्होंने खुद डिस्क्राइब किया कि कहाँ से कहाँ पहुँचे, मगर एक वाक़या और है इनका जो ज़रूर पवार साहब ने पॉलिटिक्स में लाया, मैं उसमें इत्तेफाक नहीं करूँगा, मगर जिन्होंने इनको संवारा पॉलिटिक्स में वो थे मिस्टर रजनी पटेल। और मेरी पहली इंट्रोडक्शन इनसे थ्रू रजनी पटेल हुई थी, पवार साहब से बाद में। और रजनी पटेल उन दिनों डॉन थे महाराष्ट्र के, और मेरे ख्याल में उनको भी इनकी स्माइल ही पसंद आई होगी, और कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। I'm going to ask Digvijay Singh ji to say a few words, sir. बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप, माननीय खड़गे जी, माननीय शिंदे जी, माननीय विजयधर साहब, राशिद किदवई जी, राजदीप जी, उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों। बुरी किताब में शिंदे जी को सही प्रकार से यदि किसी ने उनका चरित्र, उनका काम करने का तरीका और उनके व्यक्तित्व को किसी ने कहा है तो सोनिया जी ने अपने फॉरवर्ड में लिखा है, एवर स्माइलिंग, ऑलवेज काम एंड अनरफल्ड and with great ability to always listen to different viewpoints and find a middle path in the finest Indian tradition. यही बात हम देखते हैं कि आज के युग में जहां मैं, हम और वो की आज राजनीति हो रही है, वहां शिंदे जी एक ऐसे व्यक्ति, उन्होंने जैसा कि बताया कि राजदीप ने, कि इनके हर वर्ग में और हर ग्रुप में और हर पार्टी में इनके अपने मित्र रहे हैं जिनसे इनको सूचनाएं मिलती थी। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति एक पुलिस के कांस्टेबल से, इंस्पेक्टर से बढ़कर होम मिनिस्टर तक पहुंचा, तो उसमें काबिलियत होना ही चाहिए, और वो काबिलियत उनमें नजर आती भी है। बात वही है कि इन्होंने शुरुआत जैसी कि शरद पवार साहब के नेतृत्व में शुरुआत की, और उन्होंने अपने पवार साहब ने अपने फॉरवर्ड में लिखा है, हिज जर्नी फ्रॉम खाकी टू खादी। लेकिन इनका वो कहना कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो तेज हवाओं में पेड़ झुक जरूर जाता है लेकिन उखड़ता नहीं है, वही हालात वही हुए जब अपनी विचारधारा के खिलाफ शरद पवार साहब ने जब एक कदम उठाया तो इन्होंने झुकना पसंद किया, लेकिन टूटे नहीं और वो कांग्रेस में बने रहे। ये व्यक्ति की एक जो कर्मठता होती है वो नजर आती है। इनका जीवन शुरुआत कहाँ से हुआ, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। अपने बचपन में ही अपने पिताजी को खो दिया, और उसके बाद जैसा कि बताया गया कि
कोर्ट कांस्टेबल से हाजिरी के देने के काम पर उन्होंने अपना काम शुरुआत किया। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, कि उन्होंने अपना हमेशा काम करने के तरीके में सबको साथ लेके चलने का उनमें जो एक समन्वय और सामंजस्य समरसता का एक व्यवहार किया उन्होंने, वाकई में प्रशंसनीय है। हमारे बीच में खड़गे जी भी हैं, संयोग से दोनों हमारे उस वर्ग से आते हैं जिसको कि हजारों वर्षों तक उसको सम्मान नहीं मिला, हजारों वर्षों तक जिन्हें की शिक्षा तक का अधिकार नहीं था। आज दोनों सुशिक्षित भी हैं और साथ में अपनी कर्मठता, अपनी बहादुरी, अपने आत्मविश्वास से धीरे 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 चलकर यहाँ तक पहुँचे। इन्होंने शुरुआत जो की वो एज हिज टेन्योर एज ए होम मिनिस्टर, और वो भी बड़े चैलेंजिंग समय में। किसी भी सरकार के जो आखिरी साल होता है वो एंटी इनकम्बेंसी का एक रूप लेके चलता है, और उस समय जहां इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर तक, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से राइट विंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म तक इन्होंने जिस प्रकार से हैंडल किया, वो अपने आप में, मैं तो कहता हूं कि यदि ये फॉरेन सर्विस में जाते तो भी शायद उतने ही सफल होते जितने की राजनीति में आए, क्योंकि डिप्लोमेसी यदि किसी का नाम है तो माननीय सुशील कुमार शिंदे जी का नाम है। साथियों, मेरा यह सौभाग्य रहा कि वर्ष 1992 में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। तब ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के ये चार्ज में आए। यदि मैं कहूं कि मैं उस सन 93 मुख्यमंत्री बना तो उसका बहुत बड़ा श्रेय सुशील कुमार शिंदे जी को जाता है, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश स्टॉलवर्ड्स का जमाना था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अर्जुन सिंह जी, प्रकाश चंद्र जी सेठी, श्यामाचरण जी शुक्ला, विद्याचरण जी शुक्ला, मोतीलाल जी वोरा, माधवराव जी सिंधिया, कमलनाथ जी सिंधिया, और सभी के सभी कैबिनेट में भी थे। और उसके बीच में दिग्विजय सिंह कमलनाथ सिंधिया, मैंने सिंधिया बोला, माधवराव जी सिंधिया, कमलनाथ जी, उसके बीच में 40 साल का दिग्विजय सिंह। और आप तो जानते हैं कांग्रेस पार्टी में ग्रुपिज्म और दुनिया भर का होता है, हर पार्टी में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतने स्टॉलवर्ड्स के बीच में से मुझे सुशील कुमार शिंदे जी जैसा व्यक्ति ही उनके बीच में से निकाल के ला सकता था। और मुझे याद है जब भी कोई बात आती थी तो इनका एक फ्रेज हुआ करता था, दिग्विजय घंटी मारो, दिग्विजय घंटी मारो, चलो तुमने जो किया सही किया, तुम्हारा साथ दे। तो घंटी मार के मुझे उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। आज मैं इनका आभारी हूं जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बायोग्राफी इनकी पसंद आएगी। लेकिन मुझे शिकायत एक बात से है, इनके 50 साल के राजनीतिक जीवन को आपने 200 पन्नों तक सीमित कर दिया। इसका तो सीक्वल आना चाहिए। अब हमारे पब्लिशर्स के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक किस प्रकार से एक गरीब अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति कैसे अपने व्यवहार से, अपने परिश्रम से और अपने सब को खुश रखकर भी सफल हो सकता है। क्योंकि इनके यदि आप इनका की आलोचना भी कोई करेगा तो इन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि कई स्वाभाविक है कि कई विषय ऐसे हैं जिसमें कि हर तरह के लोगों का एक विचार हो सकता है, लेकिन उसमें उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हर बात करने का जो प्रयास किया, उनको मैं बधाई देता हूं। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शतायु हो। और अभी कोई मार्गदर्शक मंडल के सदस्य आप नहीं बने हैं, आगे भी हम लोग भविष्य में आपको हम देखते हैं। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
Our final speaker, last but not the least, is the Congress President Mallikarjun Kharge, who in many ways is ideally suited for this because even geographically, he comes from a part of the country where he and Mr. Shinde ji have a lot in common, including Marathi language. Very few people know that Mr. Kharge speaks absolutely fluent Marathi because as a young man, the newspaper that would arrive in his house in Gulbarga was a Marathi newspaper. Not in the house, railway station. जाके At the railway station. Sorry, at the railway station. This is what I like about Mr. Kharge. He is extremely direct and self-effacing when it comes to telling us these little stories that he used to collect the newspaper from the railway station. But it was a part which was part of the old Bombay state. So there's much that they have in common and they share. And they both, as I said, represent in a way what aspirational politics can do and transform lives. Mallikarjun Kharge ji. इस मंच पर पधारे हुए आज के जो स्टार है और जिनके बारे में हम सब लोग उनकी जानकारी हासिल करने के लिए ये जो किताब आज हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं तो वो है सुशील कुमार शिंदे जी, दिग्विजय सिंह जी, विजयधार जी, राजदीप देसाई जी और रशीद किदवाई जी और सारे डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ बोलने के लिए अब वो कमी रह गई क्योंकि सभी ने बहुत कुछ बोला। ये क्या होता है, कभी हमारे पास एक कहावत है, कभी शादी में जाते हो तो पहले पंक्ति में बैठे तो अच्छा खाना मिलता है, पहले पंक्ति में फक्त। और एक कहावत है, बफे सिस्टम में अगर आप बाद में जाएंगे वो भी नुकसान है क्योंकि बफे सिस्टम में जो खाता है पहले ही खा लेता है, फिर उसको कोई बचता नहीं। तो वैसा मेरी हालत हो गई है, 5 लोग बोलने के बाद मैं क्या बोलूं और सब कुछ। और ये किताब में है, आपके हाथों में किताब भी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्योंकि वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उनका भी 83 इयर्स खत्म हुआ, चल रहा है। 83 खत्म होगा 84 में। हाँ, तो मेरे से 1 साल बड़े हैं और मेरा 83 चल रहा है, उनका 84 चल रहा है। तो मैं पढ़ा उसमें, उसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत नजदीक से और सुशील कुमार शिंदे जी जो एक बहुत ही शांत स्वभाव के और हमेशा हंसमुख, उनका नाम तो पहले ज्ञानबा था, उसके बाद में उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि भाई ये अच्छा नहीं, दूसरा आप नाम रख लीजिए। तब दोस्तों ने सुझाव दिया और खुद हमारे सुशील कुमार शिंदे जी का कहना है, उनके खुद ही अपने व्यक्तित्व का परिचय आपको दिया, तो वो फिल्म एक्टर बनना चाहते थे। फिल्म एक्टर बनना चाहते थे, वो तो
कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कोई नजदीक नहीं आने दिया क्योंकि वो अछूत थे। तो इसीलिए फिर बाद में उनके दोस्तों ने सब मिलकर कहा कि कौन से उस जमाने के हीरो थे उनका सब नाम लिया, जो राजकुमार, राज कपूर, ये जो और कुमार जो लास्ट में लगाते ना, तो वैसे नाम उस वक्त थे। तो उनके दोस्तों ने बोला तुम भी अपना नाम ज्ञानमा से बदल के सुशील कुमार रख दो। तब से इन्हों सुशील कुमार बने। सही है ना? सुशील कुमार बने, तब से वो बहुत ही एक लोगों के जान पहचान होने के बावजूद हर चीज में एक चीज होती है कि पेशेंस, और बहुत पेशेंस से काम करने वाले अगर कोई नेता मैंने देखा तो है सुशील कुमार शिंदे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, कोई चीज अन्याय होता है तो मैं सहन नहीं करता, फट से बोल देता हूँ। लेकिन लोग भी बोलते भाई ये गुस्से वाला है, इसको छोड़ दो, और सुशील कुमार शिंदे जैसे को ला लो बात करने के लिए। तो ऐसे स्वभाव रखना, और वो भी बहुत दिन तक 50 साल 55 साल तक पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल है। रखेंगे 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल, लेकिन 50 साल तक पेशेंस रखना तो बड़ा मुश्किल है। वो काम उन्होंने किया, पेशेंस से रखा, इसीलिए तो होम मिनिस्टर बने, इसीलिए उन्होंने पावर मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने, हर चीज हासिल की उन्होंने। अभी बाकी है, इतना घबराओ मत, क्योंकि 84-83 में है ना। मोरारजी देसाई कब होगा आप याद करो। तो इसीलिए जल्दी अब क्या हमारा वो नहीं, मैं तो समझता हूँ पॉलिटिक्स में कोई रिटायर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसको आइडियोलॉजी पे विश्वास है, जिसको राष्ट्र की सेवा करना है, जिसको अपने कौम की सेवा करना है, उसको मरने तक ये काम करना होगा, लोगों को जगाना होगा। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ही नहीं या कोई पोजीशन ही नहीं, लेकिन आपने अपने जीवन में जो सीखा है, जो सहन किया है, और जो कुछ आपने पाया है, वो लोगों को भी देना है, वो गिफ्ट वापस करना है। तो इसीलिए आप इसको सतत काम करेंगे ऐसा मैं समझूंगा। और सुशील कुमार शिंदे जी का ये जो बुक है, पत्रकार रशीद किदवाई जी और तथा प्रकाशक हार्पर कोलिन जी जो अभी बात की है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जब भी अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वैसा इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए था। इसीलिए 50 साल का अगर आप में 200 पेज में अगर सिमट लिए तो बहुत से चीजें रह जाते हैं, बहुत से चीजें आप लोगों को मालूम नहीं करते, बहुत से चीजें युवाओं को मालूम नहीं होगा। तो उससे ये क्या है कि कभी कभी इसकी, इसीलिए किदवाई साहब और एक नंबर 2 निकालो, और जो बचे हुए बहुत से चीजें हैं उसको आगे बढ़ाओ, तभी मेरा ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट होगा।
नहीं तो आप अपने विचार से और उनके विचार से लिखेंगे, लेकिन दुनिया का भी विचार है उनके बारे में। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बारे में भी आप सोचना जरूरी है। ये उसके बाद में मैं एक ये 220 पन्ने का किताब के बारे में तो पहले दिग्विजय सिंह जी बोले, और इसमें जो लिखा गया है सोनिया गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं, उनके बारे में तो शिंदे साहब बड़े डिटेल के साथ बोले कि उनको धन्यवाद भी दिए, किन किन लोगों ने उनको आगे लाया, बढ़ावा दिया, उनके सब नाम है इसमें। वाई चौहान से लेकर वसंतराव नाइक से लेकर शरद पवार से लेकर सबके नाम इसमें है। और आखिरी में सोनिया गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने आपको कैसा आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें इस किताबों में है। तो इसीलिए आप बहुत लक्की साबित हो गए। आप जब तक कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे, या सेक्रेटरी के नाते हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के नाते, चाहे और किसी हुद्दे पे, और महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर के नाते जो काम किए, सब लोग खुश हैं। और बहुत से लोग आपके बारे में यही कि कोई काम उनके पास अगर लेके जाते तो उस बेचारे का काम वो करके भेज देते, और करके भेजने के बाद वो खुश होता था नेचुरल। किसी को ना नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसमुख, और जब हंसमुख होता है आदमी तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो उसीलिए बहुत से लोग वो हंसते हंसते काम जो करते थे वो खुशी भी लाती है, और लोग भी समझ के उनके बारे में अपना फैसला भी लेते। ये साथियों, सुशील कुमार शिंदे जी बहुत सी कामें डेवलपमेंट के महाराष्ट्र में भी उन्होंने किया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते 9 बार महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। एक 2-4 में बहुत से लोग निकल जाते हैं, लेकिन 9 बार इन्होंने टिक के है, तो इनके पास ऐसी कौन सी गुण है जो इनको 9 बार टिकाए महाराष्ट्र वाले। क्योंकि महाराष्ट्र में 1 साल 2 साल टिकना ही मुश्किल है, लेकिन आपने कौन सी ऐसी जादू की कि 9 साल तक 9 बजट आपने पेश किया। हाँ? नहीं, तो पेश किया, और हर बगैर बोले, बगैर किसी को दुख दिए, अपने बजट में गरीबों के लिए क्या करना, पिछड़ों के लिए क्या करना, उन्होंने करके दिखाते थे। कभी ज़्यादा बोल के हाई फाई करके, कभी अपना यानी लोगों के सामने दिखावा नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। अब आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा काम किया तो प्रचार बहुत होता है। अब जैसा है, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, इजाज़त है तो बोलता हूँ कि अब मोदी साहब एक काम करते हैं, समंदर में डूबते हैं, गोवा में जाके बैठते हैं, तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट आता है। लेकिन आपने इतना काम किया, सरदेसाई साहब, आप इसको ज़्यादा तवज्जो देके एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए था। आपकी दोस्ती तो ठीक, दोस्ती का इस्तेमाल कब होता है? दोस्त के लिए अगर आप काम करें तो दोस्ती का इस्तेमाल होता है, लेकिन घर तक दोस्ती ये अच्छा नहीं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कभी भी उनके जो विचार हैं या उनका जो कार्य है उसको हम बढ़ावा देना चाहिए। और ये
मैं हमेशा कहता हूं कि कोई समाज, कोई पार्टी उस वक्त वो आगे बढ़ सकती है तो उस पार्टी के विचार, फिर उस विचार के साथ आचार, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं लेकिन वो आचरण में अगर नहीं लाएंगे, आप अनुष्ठान में नहीं लाएंगे, फिर फायदा क्या है। फिर प्रचार, ये तीनों जरूरी है। आचार, विचार, आचार, प्रचार, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और लोग पढ़ के भी यही बोलते, देखो भाई सुशील कुमार शिंदे खाकी से खादी तक आए। ये जरूरी है। हम लोग शर्माते हैं, नको भाई चलो बस से इतना ही। लेकिन चंद लोग ऐसे रहते हैं, ये हमेशा लिखते हैं और हमारे कलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं, आप तो हैदराबाद को जाना आना था और वहाँ गवर्नर भी थे, तो हम तो हमेशा जाते थे। ये चलता है पॉलिटिक्स में ज्यादा, 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। लीडर्स चंद लोग ऐसे रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उसको मुर्गी भी अगर 4 आने की है तो मसाला उसको 12 आने का लगा के ठीक कर देते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आज जो भी लोग इतना मेहनत करके आगे आए हैं, उनको ज्यादा प्रचार मिलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग लिखने का कम, बोलने के उनके बारे में कम रहता है, इसीलिए उनका प्रचार ज्यादा नहीं होता। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि अगर इस देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अगर नहीं आता, जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ये अडल्ट फ्रेंचाइज को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मनवाने के लिए कोशिश नहीं करते, तो ना स्त्री या दूसरे गरीब समाज के लोग वोटर नहीं बनते थे, एमएलए नहीं बनते थे, एमपी नहीं बनते थे। ये सब जो कुछ हुआ कि इस देश के संविधान ने अडल्ट फ्रेंचाइज देकर बहुत बड़ा उपकार किया। आपको मालूम है कि हमारे पास अडल्ट फ्रेंचाइज आज़ादी मिलने के बाद सबको मिला, और 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू ये हमने किया। लेकिन यही बाहर के देशों में स्त्रियों को वोटिंग देने का पावर नहीं दिया था। हमने साथों साथ आज़ादी के बाद ये सारी चीज़ें हमने कर दी। तो ये बहुत बड़ा काम हमारा देश ने किया है, और उसका फायदा उनको भी मिला और मेरे को भी मिला। नहीं तो वो भी वहीं रहते थे कांस्टेबल बन के, मैं भी एक मजदूर का बेटा था, मैं भी वहीं काम करते रहता था टेक्सटाइल मिलों में। तो इसको हिफाजत करने के लिए हमको काम करना पड़ता है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप खत्म हो गया मेरा जमाना मत बोलिए, आपका जमाना और भी है। ऐसे हंसते हंसते आप काम करते जाओ। अब सभी लोग हम आपके साथ हैं, इसमें कोई आपको हिचकिचाने की बात नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री भी एक बात कहे थे कि इस देश का प्रगति कितना हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि देश में कुछ नहीं हुआ, आज़ादी के बाद 70 साल में, 80 साल में, 75 साल में कुछ नहीं कर सके, ये बोलते ही जाते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है
कि आज़ादी के बाद 10-15 साल में क्या हुआ, ये बात इलाहाबाद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा। मैं ये 1965 में इलाहाबाद में एक गांव की सभा में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, आज़ादी के 10-12 सालों में देश ने वो प्रगति कर दी है जो 200 सालों में अंग्रेजी राज में नहीं हुई। ये हमारे यहाँ हवाई जहाज, मोटर गाड़ियाँ बन रही है, नए बांध, नई लहरें बन रही है, अस्पताल, स्कूल और सड़कें बन रही है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना है उस वक्त का। लेकिन आज के लोग बोलते हैं देश में कुछ नहीं हुआ। कम से कम ये तो पढ़ो भाई, जो लाल बहादुर शास्त्री बोले, हम बोले सो मत सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री एक नेक आदमी, एक गरीब आदमी, उसने अपने अनुभव से बात किया है। उनकी तो बात सुनी है, हमारा मत सुनिए। हम पॉलिटिकली बात करते हैं, आप समझिए। लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। और खास करके जो बाकड़ा नाला, लहरा कुंड, ऐसे जो बड़े बड़े बांध बने, तो ये सब उसी वक्त बंदे सो है। और उससे ही इस देश की गरीबी भी थोड़ी कम हो गई। अनाज इस देश में ज़्यादा पैदावार करने का हुआ। ये सारी चीज़ें उस वक्त हो गई। और शिंदे जी, आप ऐसे संस्था के मेंबर हो, ऐसे संस्था में आप पले हो, फूले हो, और यही संस्था आपको यहाँ तक पहुँचा दी। इस देश के होम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, सब चीजें। अब क्या होना बोली? हाँ, लीडर ऑफ लोकसभा। देखो मेरे कहे तो भी उनके ध्यान में है। ये सब लिखना चाहिए कि भाई साहब, आप ऐसा छोड़ देते हैं बीच में हम लोगों को। ये लीडर ऑफ अपोजिशन, सब चीजें उन्होंने पाई। अब ये सब पाने के बाद एक ही बाकी होना चाहिए कि देश की किसी भी हालत में जो ये इस देश में कुछ आइडियोलॉजिकल बहुत बातें चलती है, उसको सुधारने के लिए, और जिस पार्टी से आप आए हैं उस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप हमको मदद करेंगे, ये मेरी पूरी आशा है। क्योंकि आप बहुत ही निष्पक्षपात हैं और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, काम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी चीज़ जो सोनिया जी ने आपके बारे में लिखा वो तो सभी को मालूम है। और उसी तरह से आपने ही जिक्र किया कि आप जब उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो शेखावत जी के खिलाफ उनको 454 वोट मिले और आपको 305 वोट मिले, है ना? अब तक हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार के रूप में शिंदे जी को ही सबसे ज्यादा वोट मिले। अब तक जो लड़े हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, सबसे ज्यादा अगर विपक्ष में कोई लिया है वोट, वो शिंदे जी की वजह, शिंदे जी को मिले। इसीलिए ये आपका व्यक्तित्व दर्शाता है और आपका काम, आपसे जुड़े हुए लोग। आपको 15-20 वोट तो बाहर के मिले कांग्रेस के अलावा, तो ये चीज है, खूबी आपने ये कमाया है नाम। तो इसीलिए मैं आपके लिए अब
बहुत मेरे पास शब्द नहीं है कि जो मैं बहुत लंबा बोलूँगा, क्योंकि है तो बोलने के लिए बहुत है, लेकिन हम क्या करते हैं बहुत बाबा कि ज़्यादा स्पीकर्स रहने की वजह से बैठे सवालों को होता भाई ये कब ख़त्म करेगा, कब हम जाएंगे छूटेंगे बोलते। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। एक शायर ने कहा है, पसीने की शाही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की शाही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और एक बार पढ़ता हूं, पसीने के शाही से, क्योंकि मेहनत हम कम्युनिटी से आते हैं, पसीना बहाते हैं, दुख देखे हैं, ऐसे लोग ये शाही पसीने के शाही से जो लिखते हैं इरादों को, उनको मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते, वो भर जाते हैं। तो ये आपकी देन है, आप इतनी मेहनत की, कोई लाइट लेने की जरूरत नहीं है। और देश कभी नारों से ही बदलता नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ नाटक करने से ही नहीं होता, उसको जरूरी तुम्हारे आइडियोलॉजी को लोगों में लाना, उनके दिमागों को ठीक ढंग से उनके दिमाग में बिठाना, ये काम होता है। लेकिन चंद लोग वो सब भूल गए हैं, वो समझते हैं कि मेरे नहीं। आज मैं पढ़ा किसी किताब में, सॉरी एक पेपर में, उसमें भागवत जी ने कहा है, तो वो किनके बारे में कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा सभी लोग अगर भगवान ही होते तो जरूरत नहीं रहती थी। और इनके पास एक कहावत है, आपके पास, संत तुकाराम बोले, मैं नहीं बोला, संत तुकाराम बोले, नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागणे काय कारण। नहीं समझे आप? देसाई साहब आप समझो, नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागणे काय कारण। उन्होंने बोले संत तुकाराम, अगर दुआई मांगने से ही, डुबकी देने से ही अगर देश सुधारता है तो शादी कर लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, बच्चे वैसे ही पैदा होते थे। 10 मंदिर को जाना, 10 फेरे लगाना, एक बच्चा पैदा। ये मेरा कहावत नहीं है, संत तुकाराम का, उनके पास के हैं। और दूसरी चीज और एक, जो बहुत गपचुप से काम करते हैं, बहुत ही अपने हिम्मत नहीं हारते, लेकिन जो काम करते हैं उनका काम दिखता नहीं, लेकिन उसका वो असर बाद में मालूम होता। वैसे एक नेता हमारे शिंदे साहब हैं, और शिंदे साहब, हम नया बिल्डिंग बन रहे हैं, वो कांग्रेस ऑफिस, ऐसी जो किताबें हैं, ऐसे लोगों के जो चरित्र ऑटोबायोग्राफी लिखे सो है, हम जरूर वहाँ एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बना रहे, उसमें हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितने भी कांग्रेस के नेता लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की इतनी लंबी, ऐसे लोगों का वहाँ पर एक आर्चीव्स बना के हम ऐसे किताबें रखेंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त तो ले लिया, लेकिन आखिरी में और एक बार बोलूँगा, बोल के मेरे भाषण को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये काम करने वाले हैं, इनके बारे में बोलना ज़रूरी है। दूसरे तो बोलते नहीं, कम से कम मैं तो बोलूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ
अब ये तो आपके दोस्त है, बोलेंगे ही ये क्या है। बहुत से दोस्तों में क्या होता है, तुम मेरा बोलो मैं तेरा बोलता हूं, ऐसा होता है। लेकिन मैं असल चीज बताता हूं, कैसा शिंदे जी ने मेहनत करके आगे आए और आज सब तरफ शिंदे ये नाम को, वो शिंदे नहीं भाई महाराष्ट्र का, ये हमारा कांग्रेस के शिंदे का नाम हो। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशाना बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जिए इस कदर की मिसाल बन जाए। तो ये हमारे मिसाल बन गए हैं हम सब लोगों के लिए। जिंदगी ऐसी काटी है, मेहनत ऐसा किए हैं, इसलिए मैं अपना हृदयपूर्वक उनको अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाकर अपनी बात रखने के लिए कहा। मैं फिर उनको सलाम करके मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। As this evening draws to an end, I take the opportunity of thanking all the dignitaries on the dais, HarperCollins, Udyan, and last but not the least, the audience and the media. Thank you very much for being with us this evening.